خواتین و حضرات، روح اور روحانیت سے متعارف کروانے والے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی دعا پڑھ لوں پلیز، کیونکہ سارا انٹرویو ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات اور پیارے پیارے ننھے مونٹے بچوں. روح اور روحانیت سے متعارف کروانے والے مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی بہت سی کتابیں بچوں کے حوالے سے بھی منظر عام پر آئی ہیں، جن میں سے پہلی سے 8ویں تک کی اسلامیات کی کتاب 200 سے زائد اسکولوں میں نصاب کا حصہ ہے. آج ہم ان کے پاس ان کی نئی کتاب بچوں کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو آئیے سوالات کا سلسلہ بغیر کسی توقف کے شروع کریں. کہ یہ اس کو کٹ کر کے ڈالتے ہیں. تو یہ بچوں کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی کتاب، حصہ دوئم اور حصہ اول، حصہ دوئم اور حصہ سوئم، جو کہ بس اتنا کافی ہے. باقی ایڈیٹنگ بابا جی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کتاب بچوں کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنے کے پیچھے کیا دلچسپ کوششیں ہیں؟ دیکھیے، سب اس بات سے واقف ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی اور جو ابھی زیور تعلیم سے آراستہ نہیں ہوئے وہ بھی، کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ ذہنی اعتبار سے بالکل بلینک ہوتے ہیں. اس کی جو بڑی مثال ہے وہ یہ ہے کہ بچے وہی زبان بولتے ہیں جو ان کی مادری زبان نہیں ہے. بچوں کا بیہیویئر وہی ہو جاتا ہے جو اس کے ماں باپ کا اور گرد و نواح رہنے والے لوگوں کا ہوتا ہے. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، بابرکت شخصیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کل عطا فرمایا، اس کو اس طرح قلم بند کر دیا جائے بچوں کی زبان میں کہ ہمارے بچے شروع سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنی استطاعت کے مطابق واقف ہو جائیں. اور دوسری یہ کہ جب والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کریں گے اور خصوصاً اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے ذہن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عکس نمایاں ہو جائے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، اسوہ حسنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے شفقت فرماتے تھے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا احترام کرتے تھے، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی مخلوق اللہ سے واقف ہو جائے. میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ صورتحال جو اس وقت ہمارے یہاں موجود ہے اگر یہی رہی تو اسلام کی تعلیمات بہت پیچھے چلی جائیں گی اور پردے میں چلی جائیں گی جیسے کہ آج ہے. اب دیکھیں ہمارے یہاں جو تعلیمات ہیں اس وقت وہ ساری اسلامی نہیں ہیں. پہلی جماعت سے کیا بلکہ نرسری کی جماعت سے آپ شروع کریں اور BA MA تک جب آپ کتابیں پڑھیں گے اس میں معمولی سی ایک کوشش تو ہے کہ بھائی قرآن شریف کی کوئی صورت پڑھانی، لیکن قرآن شریف کی صورت جو پڑھاتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں پڑھاتے. جیسے چھوٹے بچے ہیں اب ان کو بڑی صاحب آتے ہیں قرآن پڑھانے، وہ پورا قرآن 1 سال میں اس کو پڑھا دیتے ہیں. اور پڑھانے کی صورت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ بھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بچہ بھی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اس طرح وہ پورا قرآن جو ہے ختم کرا دیتے ہیں بچوں. اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ تو ہے کہ بچوں نے قرآن پڑھ لیا
لیکن جب آپ ترجمے سے ہی واقف نہیں ہوئے، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انتہائی جو ہمارے جو حافظ قرآن جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، میں بہت لوگوں سے ملا ہوں، وہ حافظ تو ہوتے ہیں اور بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، لیکن انہیں قل ہو اللہ کا بھی ترجمہ ہے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ ہم قرآن شریف کو بغیر ترجمے کے پڑھیں، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم جو سنتے ہمیں یاد ہیں قل ہو اللہ احد انا کالکوثر اس کے ترجمے سے واقف نہ ہو اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مثلا آپ ہم انگریزی پڑھتے ہیں، ہندی پڑھتے ہیں، جتنی بھی چیزیں پڑھتے ہیں، تو اس کے تو قاعدے ہی ایسے ہیں کہ ان کا سی کو ایک بلی بنا دیں گے، CAT کیٹ بلی، لیکن جب عربی ہم پڑھاتے ہیں تو اس میں وہاں کوئی ترجمے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو صورتحال ہے یہ پتہ نہیں کب سے رائج ہوئی، اللہ کو پتہ ہے، لیکن جب آپ نے اپنے بچوں کو جو کچھ پڑھایا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اس کا ترجمہ کیا، تو کیا اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو ایسی کتابیں پڑھائی جائیں اور ایسی تعلیمات دی جائیں جن سے وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی واقف ہو، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کا ترجمہ بھی انہیں یاد ہو، اور جس طرح وہ دوسری زبانیں پڑھ کے عالم فاضل ہو جاتے ہیں اور مہارت حاصل کر لیتے ہیں، انگلش میں، ہندی میں، جرمنی میں، اسی صورت سے اگر ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ انہیں نہیں پڑھایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں انہیں نہیں بتایا گیا، تو یہ اسلام میں اتنا بڑا رخنہ در آ جائے گا جیسے موجود ہے کہ پھر یہ پتہ ہی چلے گا کہ قرآن کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرمایا ہے۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمارے بچے انگریزی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے سندھی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پنجابی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے اردو پڑھتے ہیں، جب وہ بچے اسکول میں جائیں تو ایک پیریڈ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی انہیں پتہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ قرآن پاک کی جو صورتیں چھوٹی چھوٹی وہ انہیں یاد ہوتی ہیں، لیکن یاد ہو ترجمے کے ساتھ، تاکہ دیکھیے ایک آدمی پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین، مطلب بعد ہی تو پڑھ لیا، اسے ترجمے کا پتہ ہی، تو جب ترجمے کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو ذہن کس طرح ایک سو خیالات نظر آئیں گے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے بچوں کے سلسلے میں کہ ایسی کتابیں لکھی جائے جس سے بچوں کے ذہن کی نشو ہو اور بچے بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے، اور بچے ابتدائی دور سے ہی شریعت کے بارے میں، طریقت کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اور یا اللہ کے بارے میں ایسی معلومات حاصل کر لیں کہ جن معلومات کی بنیاد پر ان کا ذہن بن جائے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی سمجھ کیا ہے۔ اور میں نے کوشش پہلے میں کتابیں بڑے بڑے لوگوں کے لیے لکھتا تھا، یعنی کتنی 42 سے 44 کتابیں میں نے لکھی، الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے سیرت کے اوپر بھی 3 جلدیں لکھی ہیں، اور یونیورسٹی کے لیے بھی میں نے کتابیں لکھی، وہ MA کے حساب میں بھی داخل ہے۔ لیکن اب میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ بچے سیرت اس وقت پڑھتے ہیں جب ان کے ذہن میں دوسرے علوم کی بہت زیادہ استعمال ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آدمی ہے وہ BA میں پڑھتا ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، لیکن 12 سال تک اور جو بھی کچھ پڑھتا ہے اس کا ترجمے سے واقف نہیں ہوتا۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ بچوں کو ایسی باتیں شروع سے ہی بتائی جائیں اور والدین ان کو کتابوں میں پڑھوائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں پیدا کرے، اور ابھی سے بچوں کے ذہن میں یہ تجسس پیدا ہو کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کا اخلاق پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ روحانی علوم جو ہمیں بتائے ہیں وہ کیا ہے۔ تو میں نے ایک کوشش کی ہے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں کہ بچے کے ذہن میں ابتدائی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں ذوق اور شوق پیدا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے ہستی بنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں منفرد ہستی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس کے بارے میں بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بچوں کے ذہن میں ایسا مواد اکٹھا ہوتا ہے، ایسا ذخیرہ اکٹھا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر ان کا ذوق از خود اس طرف ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا۔ اسی بنیاد پر میں نے اپنے بچوں کی کتابیں لکھی چھوڑ دی۔ بابا جی میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بہت وسیع ہے، آپ نے بچوں کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو حالات و واقعات کا انتخاب کیا ہے وہ کس نظریے سے ہے؟ دیکھیے میں ابھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ جب بچے اسکول میں جاتے ہیں وہ بالکل بلینک ہوتے ہیں، انہیں آپ جو کچھ پڑھا دیں گے وہ پڑھ لیں گے، انہیں جو کچھ آپ سمجھا دیں گے وہ سمجھ لیں گے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور ایک کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ بچے کو کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا گیا، تو وہ جو نقوش ہیں اگر ان کے ساتھ ساتھ تکبیر کے ساتھ ساتھ وہ ترجمہ میں پڑھ دیا جائے تو ترجمے کا بھی نہ چھوڑے گا۔ اب وہ لیکن یہ تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ جب بچے اسکول میں جائیں وہ دوسری دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن پاک پڑھایا جائے، اور قرآن پاک کی جو چھوٹی صورتیں انہیں ترجمے کے ساتھ انہیں یاد کرایا جائے۔ ٹھیک ہے نا، وہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے نماز میں سوئی نہیں ہوتی، میں تو عشاء کی 70 رکعتیں پڑھتا ہوں اور سلام بھیج دیتا ہوں، میرا تو ذہن یکسوئی نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، کئی دفعہ تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو پڑھتا ہوں یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ میں نے کیا پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ اس کا ترجمہ جیسے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، وہ عالمین سے بڑا سیدھی سی بات ہے، ایک عالم نہیں ہے، کروڑوں لاکھوں عالمین ہے۔ اب آدمی کا ذہن یہ آئے گا کہ سب تعریف اللہ کی، جس نے اربوں کروڑوں عالمین بنائے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنائی۔ عالمین سے کیا مراد ہے؟ اس طرح کے لاکھوں کروڑوں عالمین ہیں، لاکھوں سورج ہیں، لاکھوں چاند ہیں، لاکھوں دریائیں ہیں، آسمان کا بھی ہے کہ ہر عالم میں آسمان ہے، ہر عالم میں زمین ہے۔ جب ہم عالمین کے اوپر توجہ ہی نہیں کریں گے تو ہم تو یہ سمجھیں گے بس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہی آسمان ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہی چاند ہے جو ہمیں روز نظر آتا ہے۔ اب اس سے ہوگا ہمارا ذہن کھلے گا۔ اگر ہم بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں اس قسم کی تحریک پیدا کر دیں کہ وہ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، ان کے اندر ایک تلاش، جستجو اور تحقیق کا مادہ پیدا ہو جائے تو وہ بڑے ہو کے لازماً قرآن پاک کے ترجمے بھی پڑھیں، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی تفکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی۔ یہ جبھی ہوگا جب ہم بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات بچوں کے ذہن میں منتقل کریں گے، اور بچپن سے ہی انہیں یہ بتائیں گے کہ اللہ اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اتنی بڑی ہستی ہونے
के बावजूद अल्लाह ताला ने अपना तारुफ भी कराया है। अल्लाह ताला बच्चों को भी नजर आ सकते हैं, बड़ों को भी नजर आ सकते हैं, बशर्ते के उसकी देखने की और कोशिश करते हैं। अब देखने की कोशिश हम जब करेंगे जब अल्लाह से वाकिफ हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वाकिफ। अब हमने अरबी पढ़ी ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं हदीस में क्या है, दूसरों ने जो बता दिया मौलवी साहब ने, बस वो भी ठीक है, इल्म आता है, ठीक है। इल्म का मंशा पूरा नहीं होता, इल्म का मंशा ये पूरा होता है कि जब आप कुरान पाक पढ़े उसके साथ पढ़ो, उसकी तफहीम से आप बाखबर हो और आपको इस बात का इल्म हो कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से क्या फरमा रहे हैं और अल्लाह ताला अपनी मखलूक से क्या चाहते हैं। और अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर जो भेजे हैं वो इसलिए भेजे हैं ताकि वो अल्लाह और मखलूक के दरमियान तारुफ का सबब बने, वास्ता बने। तो कैसे थी बात है, 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे, लेकिन हम अरबी से वाकिफ न होने के बिना, कुरान पाक की तालीमात से बेखबर होने के बिना पर हमें पता ही नहीं कितने पैगंबर आए, उन पैगंबरों की तालीमात क्या है और पैगंबरों की तालीमात का अगर हमें इल्म ही है उन पैगंबरों की तालीमात पर हमें अमल करना चाहिए। तो मेरी जद्दोजहद और कोशिश यही है कि बच्चों को ऐसा लिटरेचर फराहम कर दिया जाए कि जो लिटरेचर पढ़कर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ताल्लुक़ हासिल करे, उनसे मोहब्बत करे, उनसे इश्क करे और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ हासिल करे। यही मेरा मकसद है छोटी किताबें। अल्लाह ताला कामयाब करे इंशाअल्लाह। अभी तो ये 3 किताबें आई हैं, मेरी कोशिश तो ये है कि बच्चों की ज़हनी इस्तिताअत के मुताबिक, जैसे बच्चा पहली जमात में, दूसरी जमात में, छठी जमात में, इस्तिताअत के मुताबिक हर क्लास में ऐसी किताबें पढ़ाई जाए कि जिससे बच्चों के ज़हन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का वाज़ेह और रोशन एक तस्वुर बने। और इंशाअल्लाह ऐसा होगा, इसलिए ये जो रसूलुल्लाह किताब लिखी है इसको पढ़ के बच्चे बहुत कुछ सीख गए हैं और उनसे सवालात करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और अल्लाह के बारे में, और उनके जवाब सुनकर बहुत ही खुशी होती है। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, हमारी ये कोशिशें जारी है इंशाअल्लाह हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। बाबूजी, आप हमारी जो तालीमी निज़ाम है इसके बारे में आप क्या समझते हैं, आप इससे मुतमईन हैं? इससे तो कोई भी मुतमईन नहीं है तालीमी निज़ाम, नहीं क्या, इसलिए इस तालीमी निज़ाम में मज़हब तो नहीं है, नहीं हदीयत है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप ये ना पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें चीन में इल्म मिले तो चीन सीखने जाओ। चीन में हम जो इल्म सीखने जाएंगे वो कोई अरबी तो नहीं हो गया, इसमें उस ज़माने में चीन में तो मंदिर जो था बहुत इजादात हो चुकी थी, तरक्की बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने चीन का नाम दिया। अब ये जो है मेरी कोशिश तो यही है भाई कि जो आदमी मैट्रिक पढ़ के स्कूल से निकले, तमाम स्कूल से, लेकिन अब हमारे पास दिल्ली पब्लिक स्कूल है, हमारी कोशिश ये है कि बच्चा मैट्रिक करे उससे कम अज़ कम नमाज का पूरा तर्जुमा याद होना चाहिए। नमाज में जो स्कूल से पढ़ी जाती है उनका तर्जुमा होना याद होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का एक वाज़ेह नक्शा उसके ज़हन में होना चाहिए, ताकि देखिए अब जो हम बच्चों को सिखा देते हैं, अब ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे स्कूलों में बच्चों को डालें जहाँ दुनियावी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम भी पढ़ाए हो सके। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत को मुख्तसरन आप कैसे बयान करेंगे जो नौजवानों के लिए भी मशवरा? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर बड़ी किताबें भी लिखी है, 3 जिल्दें लिखी है, और
इसी तरह कर सकते हैं कि बच्चों को उनको पढ़ाया जाए। वालिदैन बच्चों को, जो अभी छोटे बच्चे हैं, उनको कहानियाँ सुनाई जाए। अभी हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन ऐसी वाक़ बताती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को वो पढ़ाते हैं, बड़े बड़े छोटे बच्चे हैं, वो बड़े बड़े सवाल करते हैं उनके जहन में तलाश और जस्तजू और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा हुई है। बच्चे यहाँ मुराक़बा हाल में भी हर महीने यहाँ एक मजलिस होती है बच्चों की बात, इसमें बच्चे ऐसे अच्छे अच्छे सवाल करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब के हवाले से। तो बच्चों को आप जो सिखा देंगे वो सीख लेंगे। बाबा जी आपसे एक ज़ाती सवाल वो ये कि आपकी किताबों में बड़ी अहम और बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो बड़े आसान अल्फाज में बयान हुई हैं, तो अगर कोई इस हुनर को सीखना चाहे तो आप उसके लिए क्या तजवीज़ करेंगे? देखिए, हुनर तो आप कितना पढ़ी हुई? मैंने मास्टर किया। अब मैं आपसे पूछूं, मैं मास्टर करना चाहता हूँ किसी भी शोबे में, मुझे क्या करना चाहिए? आपको यही जवाब होगा, भाई पहली जमात में दाखिल हो, फिर मैट्रिक करो, फिर ये करो, फिर MA करो, फिर मास्टर करो। ये तो ऐसा सवाल है कि कोई भी इल्म आदमी हासिल करना चाहे उसको पढ़ना पड़ेगा, शागिर्दी इख्तियार वो वर्क करना पड़ेगा। अब जैसे रूहानियत आप सीखना चाहें, अगर आपका सवाल रूहानियत के बारे में, तो रूहानियत में तो यह है भाई, नमाज़ें पढ़ो, नफलें पढ़ो, रोज़े रखो, तहज्जुद पढ़ो और जो मुराक़बेदात हैं वो करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का इतना मुताला करो कि आपकी सारी ज़िंदगी सीरत के मुताबिक हो जाए। इससे क्या होगा? उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत होगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत होगी, अल्लाह से कुर्बत हो जाएगी। तो ऐसा सवाल है कि जिस तरह आपने मास्टर किया है, उसी तरह आप वक्त निकालें, आप रूहानी में भी मास्टर हो जाए। आपकी किताब बच्चों के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन हिस्से जो हैं वो शाया हो चुके हैं, क्या आप इस सिलसिले में मज़ीद काम भी करेंगे? हाँ, इंशाअल्लाह मेरा इरादा है। बिल्कुल इब्तदाई क्लासों के बच्चों के लिए है, कोशिश है हमारी कि हम इसको मैट्रिक तक ले जाएँ। जैसे बच्चों की होती है ना, पहले ABCD पढ़ाएंगे, फिर उर्दू पढ़ाएंगे, फिर ACD केयर पढ़ाते हैं, और जिस तरह पढ़ाते पढ़ाते मैट्रिक तक ले जाते हैं, मैट्रिक से BA करा देते हैं। अब मैंने आठ क्लास तक की किताबें तो लिखती हैं, और ये 3 जो किताबें लिखी हैं बिल्कुल छोटे बच्चों की हैं, इतने छोटे बच्चों की कि माँ बाप उन्हें पढ़कर सुनाए। और हम माशाल्लाह बहुत ही मुझे रिपोर्ट मिली है, घर में माएँ अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, कामयाब करे, और उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। अपने बच्चे को लेकर बैठ जाती है, बहनें पढ़ी लिखी बच्चों को लेकर बैठ जाती है और इसका एक तरीका सुनाती है, फिर बच्चे सवालात करते हैं, उसके बताते हैं। और मज़ीद जैसे बच्चों की नॉलेज के हिसाब से उनके तालीम लिखी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने तो और लिखे बाबा जी, आपकी किताबें जो हैं वो रूह और रूहानियत से मुताल्लिक़ हैं, तो क्या बच्चों के लिए जो बुक्स आपने लिखी हैं ये इस हवाले से भी उनका जहन तामील करने का? देखिए, रूह असल में ये उलूम अलग अलग है, जैसे फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, पैरासाइकोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, उसके पूरे पूरे उलूम हैं। इसी तरह एक पुरानी इल्म है, हदीस का इल्म है, रूहानी उलूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जैसे इसलूना का रब्बी के लोग आपसे सवाल करते हैं वसल्लम से कि रूह क्या है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए रूह मेरे रब का है। और वो अम्र ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को इसके इल्म दिया, मैंने लोगों को इल्म उनका सिखाया है, अम्र का इल्म सिखाया है, लेकिन थोड़ा सिखाया है। थोड़े से मुराद ये कि कोई आदमी मुकम्मल नहीं हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बर
हंसना है, लेकिन आम आदमी जो है वो कोई आदमी मुकम्मल नहीं हुआ। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है वो अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं कि हमने दीन की तकमील कर दी, जो दीनों को बातों जो मुनियमती रबीत लकमी इस्लाम खुद ही अल्लाह ताला। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से जो भी इंसान रूहानी उलूम सीखना चाहे वो हदीस और कुरान की रोशनी में उसकी जो रियासतें हैं उनको पूरा करके रूहानी एक सीख सकता है। अल्लाह ताला का कि मैंने इल्म दिया है लेकिन खलील दिया है। अल्लाह का खलील हमसे समंदर है, समंदर कितना बड़ा है, उसका खलील क्या होगा? हम ये कहेंगे भाई समंदर का खलील दरिया होगा, और कहिए जी दरिया का खलील क्या होगा? हम ये कहेंगे दरिया का खलील नहर होगी, और कहिए भाई नहर का भाई क्या खलील होगा? खलील उसका जो है वो क्या कहते हैं तालाब होगा, कुआं होगा। जो बंदा ये इल्म सीखना चाहता है अल्लाह ताला उसकी मदद करवाते हैं और उस्ताद भी फराहम हो जाते हैं। लेकिन एक आदमी सीखने ही नहीं चाहता, स्कूल में ही नहीं आता, उस्ताद के घर पे जाके सिखा देता। इसलिए आप दुनियावी उलूम सीखते हैं। इसी तरह अगर मुसलमानों में ये जज्बा पैदा हो जाए और शौक पैदा हो जाए कि दुनियावी उलूम और शरई उलूम के साथ साथ दीनी उलूम के साथ साथ वो रूहानी उलूम भी सीखना चाहे तो सीख लें। हमारी कोशिश ये है कि तमाम इंसानों और ख़ास तौर से मुसलमानों में एक ऐसा जज्बा और शौक पैदा हो कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम रूहानी हासिल करें इस तरह जिस तरह शरीयत उलूम हमें हासिल है। कुरान पाक हम पढ़ते हैं, लेकिन कुरान पाक का तर्जुमा नहीं पढ़ते। हम कुरान पाक का तर्जुमा वही साथ साथ करें तो हम दीनी उलूम आ जाएंगे, और दीनी उलूम आ जाएंगे तो उसमें सारे रूहानी उलूम उसके अंदर मौजूद है। फिर पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल, जैसे नर्सरी से लेके एमए तक कोई पढ़ता है तो इसी तरह ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, मुराक़बा और कुरान माजिद इन चीज़ों को साथ लेके जब वो चलेगा तो उस्ताद की रहनुमाई में तो वो रूहानी बन सकते हैं। बाबा जी ये जो बच्चों की किताबें हैं क्या ये भी रूहानियत में बच्चों की बुनियाद बन रही है? बिल्कुल, मैं तो ये रूहानी नज़र से सारी किताबें जो 8 क्लास किताबें लगी रखी हैं, वैसान तसव्वुफ़ एक किताब मुल्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, वो भी इसी बुनियाद पर लिखी है। वो पढ़ाई एमए पढ़ाई जी एमए पढ़ाई जाती है, 100 नंबर प्रश्न बन जाए सारी रूहानी थी। वैसान तसव्वुफ़ के नाम वैसान तसव्वुफ़ वैसे मुल्तान यूनिवर्सिटी वालों ने रखा, इस किताब का नाम उन्होंने रखा है। अल्लाह ताला ने तौफीक मुझे दी, एहसान और तसव्वुफ़ कुर्बान के तहत किताब पूरी इसमें रूहानी इल्म से इंसानों को, तमाम इंसानों को किस तरह से फ़ायदा हासिल होता है? ये तो बड़ी आपने अजीब सा सवाल किया है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इंसान क्या है? आप ये कहेंगे ये जिस्म है, आँखें हैं, नाक है, कान है, दिमाग है, फिर मैं दूसरा सवाल करता हूँ कि ये भूख कौन लगाता है? अब आपको पास कर दो बस भूख लगती, मैं ये कहता हूँ ये प्यास कौन लगाता है? प्यास लगती है पानी लेते। जब आपका वजूद बगैर वजूहात के, बगैर असबाब के नहीं बना तो भूख बगैर सबब के कैसे लगेगी? अब ये सबब ये है कि हमारे हाथों को जरूरत पड़ती है ग़िज़ा की, तो अंदर हमारे तकाज़ा पैदा होता है तो हम खा लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ तकाज़ा क्या चीज़ है? आप मेरी तकाज़े को हम भूख कहते हैं। अच्छा भाई चलो आपने भूख कह दी, भूख हर वक्त नहीं लगती। ये दूसरा सवाल ये है कि जब आदमी मर जाता है तो उसे भूख नहीं लगती। जब आदमी मर जाता है उसके हलक में आप पूरी मशक डाल दें, एक कतरा मिल जाएगा,
मैदे में, क्यों भाई? इसका मतलब वो जिस्म पानी नहीं पी रहा है। एक आदमी मर गया, अब उसके मुंह में आप पुलाव का लुकमा डालते हैं, एक चावल भी उसके मैदे में नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि जिस्म नहीं खा रहा है। वो जो रूह जिसने जिस्म को संभाला है, उसने जिस्म को खाने पीने, सोने, जागने, बच्चे पैदा करने, ख्यालात आने जाने और जरिया बनाया हुआ है रूह ने। जैसे अब मैं ये आपको तबसरा कर रहा हूँ, ये कुछ कह रहा हूँ, अब ये सबब ये लाउड स्पीकर होता है, अब ये रिकॉर्ड हो रहा है सब, अब ये रिकॉर्ड सारी दुनिया में भी जा सकता है। तो इसी तरह रूह जो है वो आप रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को रूह आपके सामने पेश कर रही है जो हमें नजर नहीं आ रहा। मतलब भूख लग रही, हम ये कहते हैं कि हमारे जिस्म को जरूरत महसूस हुई इसलिए भूख लग रही, कोई प्यास लग रही है, आप कहेंगे प्यास लगी, जिस्म में तशनीगी महसूस हुई, पानी की जरूरत है इसलिए, सही है, लेकिन प्यास क्यों लगी? इसलिए लगेगी जिस्म का तकाजा क्यों पैदा हो? अच्छा, फिर अगर जिस्म ही खा पी रहा है, जिस्म को ही भूख लग रही है, जिस्म को प्यास लग रही है, तो मरने के बाद कैसे नहीं लगता? मरने के बाद बच्चे क्यों नहीं होते? मरने के बाद माँ के सीने में दूध क्यों नहीं उतरता? मरने के बाद एक पहलवान आदमी है, इसको जना जो वो दंगा कर रहे हैं निलाने के लिए, वो एक थप्पड़ भी नहीं मारता। नहीं, सोचने की बात है। तो असल में ये मादी वजूद जो है ये एक मीडियम है, मीडियम है, इसकी कोई हैसियत नहीं। जैसे अभी ये लाउड स्पीकर में बात कर रहा हूँ, ये मीडियम है, अब मैं इस पे बात ही ना करूँ, ये मीडियम काम नहीं करेगा। असल में हूँ, बात कर रहा हूँ, मीडियम ये है, लेकिन अगर असल मुताबिक नहीं होगा, मैं मुताबिक नहीं होगा, तो इसमें बात नहीं आएगी। आप आला से आला दर्जे का लाउड स्पीकर यहाँ ला के रखते हैं, मैं नहीं बोलता, मेरी आवाज। अब ये जो जिस्म है ये जिस्म का मीडियम है, असल रूह है, और ये वजह है जब रूह निकल जाती है तो ये जिस्म को ना भूख लगती है। भूख कहाँ लगती है? जिसका मुंह खोल के आप पानी डालेंगे, ऐसे ही पानी मुंह में पड़ जाएगा, एक कतरा यहाँ अलग से नीचे निकल जाएगा। क्यों? अगर जिस्म भी पानी पी रहा है तो मरने के बाद भी पानी उतरना चाहिए, मरने के बाद भी भूख लगनी चाहिए। जब उसे बिल्कुल उड़ियाँ करके कपड़े उतार के उसको नजरा रहे हैं, उस पर एहतजाज करना चाहिए, तो मुझे क्यों नंगा कर दे, तुम्हें शर्म नहीं आती? भी नहीं होता। असल ये जिस्म जो है रूहानी नुक्ते से, ये जिस्म की हैसियत एक लिबास के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बाबा जी एक बात बताएं, मतलब मैं साइंस पढ़ूंगी तो मैं बल्ब बना लूंगी, मैं कोई चीज़ छुरी बना लूंगी, अगर मैं रूह का इल्म हासिल करूंगी तो मुझे मैं क्या कर पाऊंगा? सबसे पहले तो ये है कि आपको अपनी जिंदगी के बारे में पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, किस तरह बना हूँ, मेरा दिल कहाँ से आ गया, गुर्दे कहाँ से बन गए, आंखें किस तरह, आंखें देख किस तरह रही है, और क्यों मरने के बाद क्यों नहीं देखती, मेरा क्या कहते हैं चलता फिरता हूँ, मैं भागता दौड़ता हूँ, मरने के बाद क्यों, मेरा कोई मच्छर काटता है तो उसे मारता हूँ, खूब चलाता हूँ, मरने के बाद वो बुरी भट्टी में उसे डाल देते हैं, कुछ नहीं सुना, जिस्म कुछ नहीं है। जिस्म उस वक्त तक है जब तक के उसके अंदर रूह है। जैसे रूह निकल गई, जिस्म कुछ भी नहीं, उसको आप मारे पीटे काट दें जला दें, कुत्ते बिल्ली खा दें। आपने देखा नहीं है, ये बैल भैंस मर जाती है, कुत्ते बिल्ली खा जाते हैं, इधर जिंदा होता है, भैंस जिंदा होती है, कुत्ता किसी करीब नहीं जाता। ये इंसान का हाल है। असल में इंसान खसारे में इसलिए है कि इसने अपनी असल यानी रूह को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों को शौक
تھا وہ روحانیت کو جانتے تھے, مراقبے بھی کرتے تھے, بڑے کامیاب تھے, مطمئن تھے. اب جب سے یہ روح کا علم پیچھے چلا گیا اور لوگوں کا بنایا ہوا مادی یہ آگے آ گیا, اس کا نتیجہ نکلا سوائے پریشانی کے, بدتری کے, خوف کے, ڈر کے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو, زندگی ہی نہیں رہی. پھر روحانی نقطۂ نظر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کو خوف رقم ہوتا, اس لیے اللہ کے دوست کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ایک علوم ہے روحانی, وہ ان سے بھی واقف ہوتے ہیں اور دنیا میں جو رائج علوم ہے وہ ان سے بھی واقف ہے, کیونکہ وہ روحانی علوم سے واقف ہے. اور جو بندہ روحانی علوم سے واقف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اوپر سے خوف رقم دونوں اشاعت حکمت. اگر کوئی آدمی روحانی ہے پی ایچ ڈی بھی ہو, سائنٹسٹ بھی ہو, اس کو نہ اسے کوئی یہ ہوتا ہے کہ رزق کہاں سے آئے, اور اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے دے نظر لوگوں کو مجھے شوق لگائے اللہ جس کو جائے جو کا حساب دے. اتنے کتنے جانور ہیں, پرندے ہیں, چوپائے ہیں, انسان سے گھر نہیں ہے, سب کھا رہے ہیں, سب پانی پی رہے ہیں, سب وہی کام کر رہے ہیں جو انسان کر رہا ہے. یہ بچے پیدا کر رہا ہے, دودھ دے رہا ہے, گائے دودھ دے رہی ہے, ماں بچے کے لیے دودھ دیتی ہے. کیا فرق ہے ایک بکری میں اور انسان میں؟ کیا فرق؟ عقل کا فرق ہے. اب جانوروں میں بھی ہے, بہت سارے جانوروں میں بھی عقل ایسی ہوتی ہے جو انسان میں نہیں ہوتی. مثلاً شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمایا قرآن پر. اب آج تک انسان نے اتنی ترقی کی, شہد کی مکھی زیادہ گھر کے کھا سکتے. اچھا کتے, میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں, لمبے میں بھی کیا کرتا ہوں, میں نے پوچھا تھا لوگوں سے کہ انسان جرم کرتا ہے, کتے اسے پکڑتے ہیں, انسان نہیں کر سکتا. انسان کی قیمت 2 لاکھ روپے اور اس کتے کی قیمت 20 لاکھ روپے. کیوں؟ اس لیے وہ کتا انسان سے زیادہ عقل رکھتا ہے مخصوص کام کے لیے, وہ پکڑ لیتا ہے. میرے اوپر انسان بے بس ہے, ہمیں جیسے انسان نہیں پکڑ سکتا, کتے کا محتاج ہے. لیکن ایک روحانی انسان اگر وہ روحانی سیکھ رہے تو کتے بلی ان سے سب سے افضل ہوتا ہے. اب جو انسان افضل ہے حیوانات سے, وہ محض عقل کی انسان ہے. اتنے وہ پڑھ لکھ گئے, عقل استعمال کی, وہ ممتاز ہو گئے. لیکن انہوں نے فرشتے نہیں دیکھے, ممتاز کہاں ہوئے؟ وہ آسمانوں سے 7 آسمان ہیں وہ نہیں دیکھے, ممتاز کیسے ہوئے؟ زمین کو بہت زیادہ طبق زمین کے دیکھ لیے, لیکن اب بھی زمین پہ ریسرچ ہے. انسان سائنس کی ترقی کرتا ہے, اوپر خلا ہے اس لیے اڑتا ہے, زمین کے اندر تو کوئی نہیں گیا. یہ بھی تو بتاؤ, زمین کے اتنے 7 طبق بتاتے ہیں, زمین کے اندر جاؤ آخر تک, جہاں تک یہ گئے وہاں یہ تو پیٹرول نکل گیا ہے, تیل نکل گیا ہے, یا پانی نکل گیا. اس کے بعد ہم کہاں جائیں؟ کیوں نہیں؟ پانی بھی تو کسی بھی ساتھ میں چلتا ہے, تیل کی بھی تو باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں چینل بنے ہوئے, ٹنلز بنے ہوئے. تھوڑی سی جو چیز عقل کی بنیاد پر انہوں نے ایسی چیزیں بنائی, جیسے اب یہ ہوائی جہاز بنا لیا, شبہ بہت عقل کی بات ہے. لیکن انسان تو مسلسل کو افضل نہیں ہوا. یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جہاز بنا کے اس میں 50 آدمی بٹھا دیے. کبوتر کی وہ ساخت ایسی ہے, چھوٹا اتنا ہے, لیکن انسان بغیر جہاز کے نہیں اڑ سکتا. کبوتر بغیر ساخت سے اڑتا ہے. پھر اڑنے میں کون افضل ہوا؟ کون افضل ہوا؟ پرندہ ہوا. لیکن ایک روحانی آدمی ٹھیک ہے, وہ روحانی سیکھ کے اڑتا نہیں ہے, اس لیے نہیں اڑتا کہ اس کو مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. عام آدمی جب خواب دیکھتا ہے وہ اڑتا ہے,
यहाँ से वहाँ मतलब यहाँ आप सो रही हैं, आप लंदन जा सकती, लंदन टावर जा सकती, अमेरिका जा सकती, और वहाँ से फिर आ जाती, वो सब आपको याद होता है। लंदन टावर में ये है, और अमेरिका में ये है, मदीने में ये है, वो ख्वाब की जिंदगी के बारे में अभी तक पता ही नहीं चला इंसान को क्या है। उसमें खाना भी खाता है, जब उठता है तो हाथ में पुलाव में कोई बुरा चीज क्या मतलब आदमी जब जिनसी दबाव होता है उसके ऊपर, जिनसी तस्कीन भी होती है, और उसकी मिसाल ये कि उसको नहाना पड़ता है, के बगैर ना पागे। इसको नहीं, ये सोने की जिंदगी भी एक जिंदगी है और बेदारी की जिंदगी भी एक जिंदगी है, लेकिन रूहानी अक़दार से वाकिफ होने के लिए, रूहानी सलाहियतों को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत है कि इंसान जिस तरह बेदारी से वाकिफ है, इस तरह ख्वाब की दुनिया से यानी रूह की दुनिया से। इसकी देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला यहाँ वाज़िमिया पब्लिक स्कूल में इस किस्म की क्लासें शुरू करा रहे हैं, अरबी तो हमने शुरू कर दी है, इसलिए कि हमारे पास इस वक्त सिवाय कुरान के कहीं ज़ख़ीरा नहीं है। दुनिया के लोग का दुनिया के लोग का ज़ख़ीरा बहुत ज़रूरी, लेकिन वाहिद किताब कुरान है, इस वक्त ऐसी किताब है कि उसमें हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ी से बड़ी बात, साइंस का मसला, डॉक्टरी का मसला, खाने पीने का मसला, हराम हलाल का मसला, चांद क्या है, सूरज क्या है, सितारे क्या है, आसमान क्या है, अर्श कुर्सी क्या है, सब कुरान फरमाते ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। किताब ऐसी है कि इसमें हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात को वजाहत के साथ बयान करती है। आप कुरान पढ़े ही नहीं, कहाँ से वजाहत मिल जाएगी? हमारी सूरत ये है कि हम BA कर लेते हैं और अंग्रेजी के मास्टर बन जाते हैं, बनना चाहिए, और कुरान सूरतें याद होती है, हमारे जब जुमे ही याद नहीं तो नमाज में एक से कैसे हो? हमारी कोशिश ये है कि हम जिस काबिल भी है थोड़ा थोड़ी काम बड़ा भी हो जाता है, अपने बच्चों को स्कूल में और हमारे से मुताल्लिक़ लोग सलासिल के लोग हैं, उन्होंने जो काम किए स्कूल में, वहाँ इब्तदाई तौर पर बच्चों को रूहानी उलूम सिखाने की कोशिश की जाए। उसी सिलसिले की एक कोशिश के बच्चों को बहुत समझ। बाबा जी, बच्चों के हवाले से की तरबियत के हवाले से आप वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वालिदैन को वैसे ये कुछ भी नहीं, वालिदैन को ये पैगाम है कि बच्चा वही करता है जो माँ बाप करते हैं। बच्चा तो भले ही होता है, बिल्कुल अब उर्दू स्पीकिंग के यहाँ पैदा होता है उर्दू बोलने लगता है, अंग्रेजी स्पीकिंग के यहाँ पैदा होता है अंग्रेजी बोलने लगता है, चीनी स्पीकिंग के लिए वहाँ चीनी बोलने लगता है। माँ बाप अगर लड्डू बना के मुंह में फेंके तो इस तरह खाएगा, लुकमों से खाए वो इस तरह खाएगा, छुरी कांटों से माँ बाप खाए उसी पर बच्चा नकल करता है, बात की भी नकल करता है, चलने फिरने की भी नकल करता है। तो अब आप अगर माँ बाप की इसका हो जाए और माँ बाप दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम भी सीखे और रूहानी उलूम भी सीखे तो बच्चों को तो आधी तरबियत नसीब नहीं होगी। लेकिन माँ बाप जो है PhD कर लेते हैं और कुरवंदा का तर्जुमा याद नहीं, बच्चे क्या करेंगे, क्या इसका होगी, क्या करेंगे? हमारी कोशिश ये है कि हमारे स्कूल में या हमसे मुतालिक जो कई सौ स्कूल में ये किताबें पढ़ाई जा रही उनमें शुरू से ही बच्चों की ऐसी तस्वीर हो, उन्हें दीन से भी वाकिफ हो, अल्लाह से भी वाकिफ हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके लिए अगर माँ बाप भी वाकिफ हो जाए तो बच्चों का काम बता सकते हैं। इससे बाकी जुबान सीखना आसान है, इस तरह बच्चों की आदत असबार वही होते हैं जो माँ बाप की। माँ बाप अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जिक्र होगा, अल्लाह ताला का शुक्र होगा, अल्लाह ताला की इनायात और करम नवाज़ी को
फरमाएंगी कि बचपन से ही बच्चों के जहन में अल्लाह ताला का इकराम हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। बच्चों को इस इंटरव्यू के जरिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारा आखिरी सवाल बच्चों तुमको पैगाम देना ही नहीं चाहिए, माँ बाप को पैगाम देना चाहिए कि अपनी इस्लाह करें, ताकि इसलिए इस्लाह करें कि वालिदैन के बच्चे नकल करते हैं। अब मैं उर्दू बोलता हूँ, मेरे बच्चे उर्दू बोलेंगे, कोई साहब पंजाबी बोलते हैं मेरे भाई, कोई पंजाबी बोलेंगे, कोई घर आने में अंग्रेजी बोली जाती है, वो बच्चे मादरी जुबान उर्दू नहीं जानेंगे, वो अंग्रेजी जानेंगे। तो बच्चे तो नकल करते हैं, बच्चों क्या पैगाम दें? पैगाम वालिदैन के लिए होता है, इस्लाह के लिए होता है, बुजुर्गों के लिए होता है, माहौल के लिए होता है। बच्चे तो करेंगे स्लेट साथी बिल्कुल। अब उसमें क्या क्या उन्हें पैगाम दूं? उनसे वो इसमें ये लिखो कि झूठ ना बोलो, उन्हें तो बोलते ही नहीं। माँ बाप झूठ बुलवाते हैं। मतलब मैं कहता था कि बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं, मैंने बड़ा इसका तस्वीर किया अपने घरों में। मेहमान आया कोई तो अम्मा या अब्बा कह देंगे, जाके कह दो अम्मा नहीं, झूठ हो गया। बच्चे के दिल से दिमाग में बीज बोल देंगे। वो एक साहब ने कहा कि कह दो जाके अम्मा घर पे नहीं, मेरे जानने वाले थे, उनका बच्चा बाहर गया, अब्बा कह रहे हैं अब्बा घर पे सीधा आदमी, बच्चे सीधे होते हैं। इतनी उन्हें शर्मिंदगी हुई, बाद में आना पड़ा दोस्तों में। बच्चा तो ब्रेन खोल रहा है बिल्कुल स्लेट। अब उस पर आप सच लिख दें, सच बोलेगा, झूठ लिख दे, झूठ बोलेगा, दुनिया की मोहब्बत लिख दे, दुनिया की मोहब्बत हो जाएगी। अल्लाह रसूल की मोहब्बत उसकी स्लेट पे लिख दे, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करेगा। जो घराने नमाज पढ़ते हैं उनको पता है कि 1 साल 1.5 साल का बच्चा सजदे करता है, ऐसा नहीं करता। क्यों? कॉपी करता है, नकल करता है। बुनियादी बात ये वालिदैन की इस्लाह। वालिदैन कहते हैं खबरदार झूठ नहीं बोलना। अब कोई मेहमान आया, वो घर जाके तो पकड़ते नहीं, वो कहते हैं जी इसमें आधार उठानी है और वो रिश्वत दे रहे। कह रहे मेरे माँ बाप झूठे हैं, तो मुझे भी झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोलना कोई अच्छी बात है, इसलिए मेरे माँ बाप बोल रहे हैं। गुस्सा करते हैं माँ बाप, आपस में लड़ते रहते हैं, बच्चे जब लड़ते हैं तो वो उन्हें मारते हैं। क्यों लड़ते हो? अरे भाई बच्चे ने लड़ना कब सीखा? इसे क्या पता लड़ाई क्या है? माँ बाप लड़ते हैं, बच्चे इसकी खबर करते हैं। बच्चों को क्या पैगाम दो है? वालिदैन को पैगाम है कि अपनी इस्लाह करें, इसलिए बच्चे तुम्हारी नकल करते हैं। तुम झूठ बोलोगे, बच्चे जरूर ढूंढोगे। मैंने देखा है जिन घरों में चीख के बात करते हैं शौहर बीवी, वहाँ बच्चे भी चीख। जिन घरानों में मियाँ बीवी लड़ते हैं, वहाँ बच्चे आपस में भी लड़ते हैं और माँ के साथ भी लड़ते हैं, बाप के साथ भी लड़ते हैं। इसलिए उन्हें पता ही नहीं लड़ाई क्या चीज है। भाई तो पैदा हुए उन्हें क्या पता लड़ाई क्या चीज है? का इरशाद है कि हर बच्चा ये फितरत को पैदा होता है, इसके माँ बाप हिंदू मुसलमान या इसके बच्चों को क्या पता? एक छोटा बच्चा है, उसे क्या पता झूठ क्या है सच क्या है? उसके सामने सच बोलोगे वो भी सच बोलेगा। तुम अपने शौहर से लड़ोगी, बच्चा भी लड़ेगा। शौहर बीवी से लड़ेगा, बच्चा भी लड़ेगा। या बीवी आपस में प्यार मोहब्बत से आप जनाब से बात करेंगे, ये आप जनाब से बात करेंगे। तो ये जो साहब थे कान खा रहे थे, वो बच्चा उन्होंने लिया यूं उछाल, तो उछाल के आ गया, तो बच्चा रोने लगा। उन्होंने मुंह में से पान निकाल के क्या तरबियत हुई गई? वो बच्चा वो कहीं से चोरी करके ले आया,
अम्मा ने उसको छुपा दिया। जैसे सुल्तान डॉक्टर का किस्सा आपने सुना होगा, आपकी किताब में वो अंडा चुरा के लाया था, माँ ने खिला दिया। वो जना वो डॉक्टर चोर चुराया होगा, आखिर में डाकू कर दिया सुल्तान। तो बच्चा तो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उन्हें क्या पैगाम दें? पैगाम तो माँ बाप को दिया जाएगा, भाई जो कुछ तुम्हें बच्चे को बनाना है खुद बन जाओ। जिन घरों में नमाज पढ़ाई जाती है, माँ के छोटे छोटे बच्चे 1.5 साल के 2 साल की नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते, तो क्या पता नमाज का नकल कर रहे हैं। आप अच्छे हो, माँ बाप अच्छे होंगे, खानदान अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा। बहुत